guys, this is Devin and this is vlog 2 in Vietnam. So आज हम जाने वाले हैं कुछ वियतनाम वॉर के टाइम के बंकर्स एक्सप्लोर करने, और उन्होंने टनल्स बिल्ड किए थे वो एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं आज। और आज हम एक रियल AK-47 शूट करने वाले हैं अपने खुद के हाथों से। सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी फन। लेट्स लीव। अभी हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो चलो आई शो यू व्हाट आई ईट टुडे एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू गो एंड डू ऑल दोज थिंग्स। लेट्स गो। सो दिस इज माई ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। आज मैं खाने वाला हूँ फ्रेंच टोस्ट, उसके साथ हैश ब्राउन्स, एक पीस बेकन का, और एक ये जो है वो मेपल सिरप है, इस पर डाल के खाऊँगा। So right now we are at the Cu Chi tunnels, and these are the tunnels where the communists in Vietnam used to hide from the French revolutionaries. So क्या था कि यहाँ पे जो वियतनामीज कम्युनिस्ट रहते थे वो उन्होंने ऐसे नीचे ग्राउंड के नीचे से टनल्स बनाए हुए हैं, एंड वो टनल्स सब जगह कनेक्ट होते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर अंडर टनल्स बनाए हुए हैं उन्होंने। तो हम वही एक्सप्लोर कर रहे थे। मैंने एक टनल में, मतलब टनल नहीं, एक छोटा सा गड्ढा टाइप सा, तो उसमें बैठकर देखा तो इट वाज पिच डार्क एंड ऑल दीज टनल्स आर कनेक्टेड ईच एंड एवरीवेयर। Straight to hands. लॉक झालं तर हात काढ ना. Okay, slowly. Oh! Capital of the South Vietnam government. Our hotel's right here. Dot, see, red dots. The red dots. They are fighting bunker. It's very narrow. The guerrillas warfare. I mean, because they were not so many, they have to hide inside the bunker and wait for the enemy. When the enemy come, they shoot into the enemy. Suddenly, only few shots, and then they get back into the hideaway. They don't stay there for long because they will be killed by the grenade, by the bazooka and heavy fire. And then come the second levels, and bomb shelter. When the bomb drop down, they go deeper to the bomb shelter. The bomb shelter stronger with the A-sharp shelter. And booby trap is a trap for the enemy. Water well, for clean water, cooking and drinking. And some, you can see the trap door here. Many trap door, the door. Actually, nobody want to make a door in the tunnel, right? So these small mountain type things are the boulder like things. These are for ventilation, air ventilation. There are tunnels down, and these small boulders provide air ventilation to the communists under those tunnels. The tanks which were used in the war. So here are the booby traps which were used in the war, and I don't know if you can hear any gunshots, but there is a shooting range nearby, and there we are going to try the guns which were used in the war, like AK-47s. There are many guns, but the most popular one was AK-47 here, so we'll also try that. Behind the door. When the enemy come here, to check inside, they kick into the door to open it. The trap falls down, you see. If they fast and strong enough, they will start the trap by hand again. But the second one is still working. You see, even to they stop, this one is still working. Attack into the lower soldier. And do you know what happened after that? So these were all the small traps which were used in the Vietnam War, and also the trap he was showing us right now was a door trap, wherein if a person knocks on your door, or if he kicks it, then all the spikes which are on that trap, and those are going to go in his feet. You have the gunshots very easily here, as it is closer. And see this. What a booby trap, It's an easy work. Children can do this. But for a skill spot, this one, or a trap right there, small one. This is a small simulation wherein they show that how the people, well, in the past times used to make those booby traps and how they used to live in these tunnels.
You can go this way. So these were like fake people, huh? Because in the video it seems very real that these people are real, but these are fake people. It's like a small stimulation that there is a shooting on this side, so you can hear the gunshots very clearly now. We are also going to try these. Let me show you how the shooting range looks. So I'm just now going to the shooting range. So guys, I just shot the AK-47. भाई साहब जो एड्रेनलिन रश आया है मुझे, भाई उस गन का रिकॉइल इतना क्रेजी है भाई। लोग कैसे चलाते थे उस टाइम पता नहीं, अभी भी कैसे वो जो फीलिंग है ना, डैम भाई बीटेबल नहीं। और ये तो मैंने टारगेट पे चलाए थे, पर एक भी टारगेट पे लगा नहीं भाई, क्योंकि वो गन का रिकॉइल इतना क्रेजी था। मैं जो मार रहा था वो सारे ऊपर जा रहे थे, crazy. So these are the tunnels which I was saying about, and I am not going inside those tunnels. You can go inside those tunnels, but actually मुझे claustrophobia है और मुझे cramped spaces में ऐसा breathing का बड़ा issue होता है। That's why मैं नहीं जा रहा, पर मेरा भाई गया है। तो this is a 20 meter long tunnel, मतलब 3 मिनट लगते हैं पूरा टनल क्रॉस करने में। So he will come from this side, this tunnel. So there are 3 stages. So this is the first stage. There are 2 more there, but it becomes more longer and longer as it goes. No more. That's right. You know that's why. In India, you plant a lot of stuff. So this is what day 8. So the communist here which lived here. This is what day 8 when they were down in the tunnels. The thing we ate right now, it was sweet potato maybe, and it was bland. But they used to store it for a long period of time. That's why it was used more often in these tunnels. This is how they used to dress up in the olden times. And पापा हमारे, उनको बड़ा मज़ा आता है ये सब चीज़ें देखने में और उसके बाद मस्ती करने में। तो वही कर रहे थे अभी। जो हमारा टूर गाइड था ना, वो जो वियतनामीज कम्युनिस्ट है ना, उनको गोरिल्लास बुला रहा था। पापा को लगा भाई सच में गोरिल्लास रहते थे। पापा उसको पूछने आते थे कि भाई फिर अभी कहाँ गए गोरिल्लास। मुझे उसको पूछना है गोरिल्लास क्यों बुला रहे थे, क्योंकि वो हमें बोला कि जो कम्युनिस्ट थे वो बहुत थिन थे, क्योंकि खाने का बहुत शॉर्टेज था उस टाइम वियतनामीज लोग। पर फिर भी गोरिल्ला सेंस नहीं बनता ना, दिखता है पूछते हैं। अभी तो टूर ख़त्म हो गया, ये कुची टनल का तो टूर ख़त्म हो गया। अभी हम सोच रहे हैं कि एक तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक कनाल है, तो हम एक तो उधर जा सकते हैं, नहीं तो वापस हमारे रिसोर्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि जो कनाल है वो इधर से 2 आवर्स है। हमें रिसोर्ट से इधर आने में 2 आवर्स लगे। सो वापस जाने में टोटल 4 आवर्स, और हमें 7 बजे तक उसको फ्री करना है। तो वी आर थिंकिंग ऑफ ड्रॉपिंग द कनाल, बिकॉज कल से हम एक आइलैंड को रहने जाने वाले हैं, जिसका नाम है, नाम पूछना पड़ेगा मेरे को। तो आइलैंड पे पानी ही रहेगा सब, तो अभी आज वो जाने का पॉइंट नहीं बनता। दैट्स वाई वी आर मोस्टली गोइंग टू ईट समथिंग फर्स्ट, एंड उसके बाद हम जाने वाले हैं रिसोर्ट पे, या हम मार्केट वगैरह में जाएंगे वापस, टाइम पास करेंगे, देखते हैं। अच्छी इधर का वेदर है ना, वो समझ नहीं आता। एक्चुअली द थिंग इज़ कि सुबह जब हम निकल रहे थे बहुत ज़्यादा धूप थी। अभी
उधर घूम रहे थे, उधर भी धूप थी, पर अभी जस्ट बाहर आए उधर से और थोड़ा धीरे धीरे क्लाउडी होने लगा है। कल भी ऐसा ही हुआ, पूरी सुबह दोपहर धूप थी, उसके बाद जब हम बाहर निकले खाना खाने के बाद वगैरह, तब एकदम से क्लाउडी हो गया और 6 बजे बारिश चालू हो गई। तो थोड़ा सा वियर्ड है, पर इट्स ओके, क्योंकि वो फिर बारिश होने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो फिर एसी वगैरह चलाने की इतनी नीड नहीं लगती है। अच्छा है वेदर, मतलब नॉर्मल है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा वेदर है ये, बताएगा तो। फाइनली आफ्टर 2 आवर्स, 2 भी नहीं, ऐसा लगा भाई पूरी ज़िंदगी उस गाड़ी में निकल जाएगी, पर पहुंच गए। आपको लग रहा होगा कि मैं रिसोर्ट बोल रहा हूँ, पर नहीं, हमने ऑप्शन 1 चूज़ किया। हम अभी जा रहे हैं रिवर को। अभी एक्चुअली ये रिवर है मेरे सामने, इसके अपोजिट एक आइलैंड है, तो उधर एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो हम उधर खाना खाने जाने वाले हैं। उसके बाद बोटिंग करने वाले हैं। मन तो बिल्कुल नहीं था, पर टूर गाइड लेके आ गया, फिर क्या करेंगे। चलो लेके जाता हूँ आपको आइलैंड। और हम जो इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले हैं उसका नाम है मसाला आइलैंड। भाई क्रेजी शिट चालू है भाई, मेरे को तो इतना बोर हुआ भाई बोट नहीं आ रही, वो कार में तो इतना बोर हुआ ना भाई, मेरे को ऐसा लगा भाई क्यों बैठा हूँ भाई, बैठा टेलीपोर्ट नहीं हो सकता क्या आदमी। बजट अभी 4 बज गए भाई, 4, और खाना नहीं खाया अभी तक भाई। भूख मतलब सुबह नाश्ता किया था, मतलब ब्रेकफास्ट किया था सुबह, बजट 9:30 बजे ना ब्रेकफास्ट करने के लिए गया था, अभी बजे 4, कुछ खाया नहीं। तो वो जो नाश्ता किया था उस पर ही वो भी। ये बोट तो अच्छा दिख रहा है, एस्थेटिक तो है भाई सब इधर। ऐसा ये सिटी जो है ना, ये एकदम ऐसा स्लो मूविंग, स्लो पेस सिटी है, सब ऐसा उनके धुन में चल रहा है, सब ऐसा धीरे धीरे आराम से। ये हमारा टूर गाइड भी वैसा ही है, आराम से इसका सब चालू है, पर इसको सब घुमाना है भाई एक दिन में। ये जो सिटी है ना, मतलब सिटी अगर आपको ऐसा नॉर्मल सा स्लो ऐसा रिलैक्स चिल करना है, इस सिटी में आ सकते हो। अगर आपको एडवेंचर ऐसा प्रॉपर घूमना है, बीचेस पसंद है, आइलैंड्स को जाना है, देन मे बी दिस इज़ नॉट द सिटी फॉर यू। सो फाइनली अभी खाना खाएंगे, पहुंच गए मसाला आइलैंड। भाई पूरा माहौल वेवी था भाई बोट में, क्योंकि जो टाइड है ना वो स्ट्रेट जा रही थी, और हम ऐसा उसके बीच कट करके वो टाइड को जा रहे थे। दैट्स व्हाई द वेव्स वर स्मैशिंग आवर बोट हियर एंड देयर। खाना वगैरह हो चुका है। आज मैंने और मेरे भाई ने नॉनवेज खाया, पर ठीक ही था नॉनवेज, मतलब बाहर से नॉनवेज खाना थोड़ा रिस्की होता है, पर तो क्या। अभी हम है, ये नाम जो मैंने बोला ना मसाला आइलैंड, ये आइलैंड का ही नाम मसाला आइलैंड, जहाँ पे अब हम अभी आए हैं वो। तो हम ऐसा छोटा आइलैंड टूर ले रहे हैं, हमारा गाइड हमें टूर दे रहा है आइलैंड का। इस आइलैंड पे मोस्टली यही है, सारे रेस्टोरेंट वगैरह ही है। और दिस इज तलापिया फिश। मैं आउटडोर बॉयज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो मुझे फ़िश के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो इन्होंने मुझे अभी बताया कि यहाँ पे एक फ़िश फार्म भी है, उधर कार्प मिलते हैं, कार्प। भाई आपने अगर आउटडोर बॉयज़ देखा होगा और उसका एक वीडियो, उसमें उसने क्रेज़ी कार्प पकड़े थे भाई, मज़ा आता है उसको फिशिंग करते हुए देख के। वो अभी बता रहा है हमें कि क्या मतलब कहाँ पे क्या प्लांट किया हुआ है इन लोगों ने वगैरह। You know, because of the flower, when we take all the honey here, they go to another place and take honey from another place.
and then come back again. One round, they come back again. The whole year they have a honey. Honey here they sell for money. Yes, of course. हम अभी ये आइलैंड पूरा बाकी मैं बैठ के ये करने वाले Ready? थोड़ी मारे तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक बग्गी है तो पूरा आइलैंड एक इसमें घुमा देगा हमें सो हम अभी ये जो फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे उगता है वो हम टेस्ट कर रहे थे फ्रेश फ्रूट्स उसके साथ इधर के जो लोकल्स है वो हमारे लिए गाना गाने वाले हैं सम फोक म्यूज़िक एंड हम अभी तलापिया देख रहे हैं इनका फैमिली पेट है ऐसा Ladies better. Yeah, ladies better. Try. Yeah, slowly. और टूर गाइड से कि अगर आप अच्छा आदमी हैं तो आपको हाथ लगाने देगा अगर आप बुरा आदमी हैं तो आपको हाथ नहीं लगाने देगा मैं तो हाथ ही नहीं लगाया दोनों नहीं होगा राइट नाउ वी आर बोटिंग इन अ स्मॉल कैनाल He's scared, bro. He's scared. It's a small canal. There are many boats here, and the boat is tilting somehow. I don't know how. Just finished with our boat ride. जो चैनल थी वो बहुत शांत और ऐसा थोड़ा सा लो लाइट वाली चैनल थी और मज़ा आया जो पीसफुल लगा वो शोर शराबे के बाद ये थोड़ा नॉर्मल लगता है एकदम ऐसा माइंड क्लेंजिंग पॉजिटिव अभी हम वापस आए थे मेन लैंड पे अभी जो हम गए थे दैट वाज अ स्मॉल आइलैंड ऐसे 4 आइलैंड है इधर नाम मुझे याद नहीं है एक ड्रैगन आइलैंड है एक जो हम थे उसका नाम था मसाला आइलैंड और एक टर्टल आइलैंड ऐसे और एक आइलैंड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा पर ऐसे 3-4 आइलैंड्स थे और अभी हम वापस आए जस्ट अभी इधर से हम पक्का रिसोर्ट ही जाने वाले हैं दैट इज़ फॉर 2 आवर्स एंड उसके बाद देखते हैं क्या करना है मोस्टली हम खाना खाने बाहर तो नहीं जाएंगे एक तो अभी जाते टाइम पार्सल लेके चले जाएंगे रूम पे नहीं तो उधर ही रेस्टोरेंट है नीचे तो उधर वी कैन गो एंड डाइन इन सो दैट्स इट फॉर आवर डे एंड आज की सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है तो अभी जल्दी से जाते हैं रिसोर्ट